Hey Sam, do you know? I think today Roy sir is going to start one new lesson. Which lesson, Neha? That I don't know, but we will come to know about it when Roy sir will come in the class and start the lecture. Okay, then let's move toward our class. Good morning, sir. Very good morning, beta. Have your seat. So, today I am going to start one new lesson. That is lesson number 8. Quadrilateral, constructions and types. Wow, sir, that will be an interesting lesson. But today's lecture is going to be more interesting. How, sir? Today, at the end of the lecture, I am going to ask one question related to this topic, and those students will comment the right answer in the comment box. I am going to announce their name in the next lecture. Wow, sir, that means we have to write the correct answer in the comment box, and below that we have to write our name, like this is the answer and my name is Sam. Yes, Sam, you are genius. This way only we have to comment the answer. You have to write the answer in the comment box. Also write your name below that so that I can announce your name in the next lecture. Let's begin. आपके पास ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होना चाहिए और हम ओपन कर लेंगे हमारे ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को और देखेंगे उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है और ये सारी चीज लेके हम बढ़ जाएंगे हमारे मैथ क्लास की तरफ. सो लेट्स बिगिन. तो कब कौन सा डिग्री यूज करेंगे? जब आप सेगमेंट के लेफ्ट साइड के डॉट के ऊपर प्रोटेक्टर प्लेस करेंगे, दैट टाइम यू हैव टू सी द लोअर नंबर, मतलब नीचे के नंबर को देखना है. ओके, तो दिमाग में फिट करो, लेफ्ट साइड मतलब डाउन वाले नंबर. और जब सेगमेंट के राइट साइड में डॉट के ऊपर प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे तो आपको चेक करना है अपर नंबर. इसका मतलब दिमाग में बात डाल लो, लेफ्ट साइड डाउन नंबर, राइट साइड अप नंबर. एंड वीडियोस को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करो. 8.1. नाउ इन दिस 8.1 we are going to construct the quadrilateral. So what is the question? Construct the following quadrilateral of the given measure. Means हमें कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल जिसका मेजर उन्होंने हमें दिया हुआ है. So what is the name of the quadrilateral? I'll read the main question 1, that is in quadrilateral MORE. Length MO is equal to 5.8 centimeter. Length OR is equal to 4.4 centimeter. And measure angle M is equal to 58 degree. Also they had given that measure angle O which equal to 105 degree and measure angle R is equal to 90 degree. So student, with this all information we will move toward our sum. So first I will draw a rough figure, that is MO as a base and angle M is equal to 58 degree, and from angle O I will draw 105 degree. So मैं एंगल M से 58 डिग्री का मार्क करूंगा और एंगल O से 105 डिग्री को मार्क करूंगा और यहां से मुझे मिलेगा फिर R और E, जहां पे R होगा 90 डिग्री. नाउ ये मेरा रफ फिगर था. दिस वॉज माई रफ फिगर एंड आई विल मूव टू द मेन फिगर. इन द मेन फिगर सेम आई विल फर्स्ट ड्रॉ द बेस. नाउ स्टूडेंट, आपको पता ही है कि यहाँ पे आप प्रोटेक्टर का यूज लेफ्ट पॉइंट और राइट पॉइंट दोनों में कर रहे हो और आप सभी को पता है राइट मतलब अप एंड लेफ्ट मतलब डाउन. सो हम पॉइंट O पे प्रोटेक्टर को रखेंगे और O राइट साइड में है तो आप अपर नंबर्स को देखोगे, अपर नंबर से 105 को मार्क करोगे एंड वी विल ड्रॉ द एंगल ऑफ 105. नेक्स्ट हम लोग M के ऊपर उसे प्रोटेक्टर को रखेंगे. M के ऊपर उस प्रोटेक्टर को रखने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये कौन सी तरफ है, लेफ्ट. तो सारे डाउन वाले नंबर देखेंगे. डाउन में 58 डिग्री को मार्क करने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड वी गॉट द एंगल ऑफ 58 डिग्री. नाउ फ्रॉम द O वी विल यूज द राउंडर. O पे रखेंगे पॉइंटर को और पेंसिल की तरफ से हम लोग आगे एक आर्क बनाएंगे जो
वहां पे 4.4 सेंटीमीटर का होगा। एंड अगेन कीपिंग द प्रोटेक्टर ऑन दैट आर्क, आई विल मार्क 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री बनने के बाद you will get the quadrilateral MORE, and finally we got our quadrilateral easily. Okay student? Okay, so let us move to the next part of this sum, whereas we will learn the second sum of this lesson. But before moving to the sum, I will just ask you that if you like the way we are teaching, then please mention in the comment section and like the video. अगर आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम वैसा चेंजेस अपने वीडियोस में लाएंगे आपके लिए। नाउ वी विल फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट वन क्वाड्रिलेटरल दैट इज DEFG। सो मैं यहाँ रीड कर लेता हूँ। इन क्वाड्रिलेटरल DEFG, length DE is equal to 4.5 centimeter, length EF is equal to 6.5 centimeter, length DG is equal to 5.5 centimeter, length DF is equal to 7.2 centimeter, and length EG is equal to 7.8 centimeter. सबसे पहले बना लेंगे हमारा रफ फिगर। इन द रफ फिगर we will first draw the base, that is DE। हम DE को बेस रखेंगे, that will be 4.5 सेंटीमीटर। ओके, फ्रॉम दैट बेस वी विल ड्रॉ एन फर्स्ट ट्रायंगल। एक ट्रायंगल को क्रिएट कर लेंगे। फ्रॉम E आई विल मार्क 6.5 सेंटीमीटर, देन फ्रॉम D आई विल मार्क 7.8 सेंटीमीटर। अगेन आई विल ड्रॉ वन मोर ट्रायंगल, दैट इज फ्रॉम D आई विल मार्क 5.5 centimeter, that will be G. From E I'll mark 7.2 centimeter, that will be the diagonal of the quadrilateral. And after joining this quadrilateral's diagonals, that is G and F, I'll easily get the quadrilateral. Now मुझे लगता है आप लोगों को रफ डायग्राम को बनाने में इतना इस सम को समझने में नहीं आया होगा, बट उसे हम इजीली सीखेंगे। तो पहले बना लेंगे हम बेस DE। नाउ ये बेस बनाएंगे कितने सेंटीमीटर का? 4.5 सेंटीमीटर का। इसे बनाने के बाद आप राउंडर को ले लो। राउंडर को लेके 6.5 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाओ E पे रख के। नाउ फिर से D पे रख के 7.8 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाओ और इसे जोड़ लो। आपको दिखाई देगा कि आपके सामने एक ट्रायंगल बन चुका है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आप D पे रखो। D पे रखने के बाद 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाओ। ओके, D पे पॉइंटर को प्लेस करेंगे एंड आर्क बनाएंगे 5.5 सेंटीमीटर का। फिर E पे रख के 7.8 सेंटीमीटर के आर्क से उसको कट करेंगे। ये जैसे कट होगा मुझे मिलेगा D को बेस रखते हुए और एक ट्रायंगल जो दिख रहा है मुझे, ट्रायंगल DEG। नाउ जो मुझे G मिला है और जो मुझे F मिला है, तो उसे हम क्या करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट कर लेंगे। विल कनेक्ट विथ ईच अदर एंड वी विल गेट द क्वाड्रिलेटरल DEFG। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन नंबर 3 we have to again draw a quadrilateral but in a new way. Here they had told the quadrilateral name is ABCD. Now यहाँ पे जो ABCD हम बनाने वाले स्टूडेंट, वहाँ पे हमें सारे इंफॉर्मेशन भी दिए हुए, क्योंकि यहाँ पे आप उन लोग हमसे बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल ऑफ अ गिवन मेजर, क्योंकि जैसा उन्होंने मेजर दिया है हमें उसे बनाना है। तो देख लेते हैं ABCD में क्या दिया है। In quadrilateral ABCD, AB is equal to 6.4 centimeter, BC is equal to 4.8 centimeter, measure angle A is equal to 70 degree, measure angle B is equal to 50 degree, and measure angle C is equal to 140 degree. Now we are first going to draw the rough figure. सबसे पहले हम लोग रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। बेस लेंगे AB 6.4 सेंटीमीटर का एंड फ्रॉम पॉइंट B हम 50 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे
एंड फ्रॉम पॉइंट ए हम 70 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे एंड आफ्टर ड्रॉइंग दिस टू एंगल वी विल मार्क फ्रॉम पॉइंट बी 4.8 centimeter and then we will draw again one angle from that 4.8 centimeter, that is 140 degree. After drawing that we will get the quadrilateral. Now आपको ये रफ फिगर समझ में आ गया होगा, बट अगर इसे समझने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है हम फेयर फिगर देखेंगे, यहाँ पे आप लोग को पूरा सम इजीली समझ में आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे पहले बना लेते हैं बेस। बेस इज ए बी, दैट इज 6.4 centimeter. After drawing this base, keep the protector on point B. B on the right side, तो B राइट साइड में है तो आप ऊपर के नंबर देखेंगे और वहां से आप एक एंगल बना लेंगे और आपको मिल जाएगा एंगल B विच इक्वल टू 50 डिग्री। नाउ A, वेयर इज A? A इज ऑन द लेफ्ट साइड। A आपके लेफ्ट साइड में है, तो जब भी आप उसके ऊपर प्रोटेक्टर को रखेंगे तो नीचे के नंबर में, लेफ्ट मतलब डाउन, सारे नीचे के नंबर देखेंगे, नीचे से 70 डिग्री को मार्क करेंगे एंड वी विल ड्रॉ वन एंगल। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका राउंडर निकाल लेना है एंड कीपिंग द पॉइंटर ऑन बी यू हैव टू मार्क द आर्क ऑफ 4.8 सेंटीमीटर ऑन एंगल बी। और ये 4.8 सेंटीमीटर का आर्क जहां बना है, फिर से वहां पे प्रोटेक्टर रखेंगे एंड 140 डिग्री को मार्क करेंगे। जैसे ही 140 डिग्री का एंगल हम लोग जोड़ेंगे हमें मिल जाएगा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें बहुत ही इजीली मिल चुका है हमारा क्वाड्रिलेटरल, दैट इज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी। नाउ स्टूडेंट वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम काफी इंटरेस्टिंग है। इन दिस सम देयर आर two pairs of segment which are equal. Yes, so we will solve that sum, but before that student I want all of you should practice all this sum whatever we are watching on this video, because as you know very well, without practice you can't able to get good marks or able to remember all the sums of maths properly. सो स्टूडेंट प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है एंड प्रैक्टिस मेक अ मैन, आई विल से नॉट परफेक्ट बट मोर परफेक्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने बोला है क्वाड्रिलेटरल एल एम एन ओ सच दैट यहाँ पे जो फर्स्ट पेयर ऑफ सेगमेंट जो इक्वल है, दैट इज लेंथ एल एम इज इक्वल टू लेंथ एल ओ। तो यहाँ पे एल एम और एल ओ इक्वल है किससे? 6 सेंटीमीटर से, मीन्स ये दोनों 6 सेंटीमीटर है। एंड ओ एन एंड एम एन इज ऑल्सो इक्वल, एंड ये कितने से इक्वल है? इज इक्वल बाय 4.5 सेंटीमीटर। एंड वन सेगमेंट दैट इज लेंथ ओ एम इज डिफरेंट विच इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स सॉल्व this sum. Before solving this sum, we will first draw a rough figure. हम लोग रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहला बेस बनाएंगे इस एल एम। सो एल एम को बेस रखते हुए फर्स्ट आई विल मार्क 6 सेंटीमीटर फ्रॉम एल टूवर्ड ओ। तो ये होगा हमारा एल ओ 6 सेंटीमीटर एंड ओ से मैं एम को जोड़ लूंगा, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ हो चुका है। नेक्स्ट ये ट्रायंगल ड्रॉ होने के बाद मैं OM को बेस लूंगा। यस, OM को बेस रखते हुए 4.5 सेंटीमीटर का एक लेंथ ड्रॉ करूंगा जो M से होगा, और O से भी 4.5 सेंटीमीटर का एक लेंथ ड्रॉ करूंगा जो N को जाके टच करेगा, और हमें मिल जाएगा क्वाड्रिलेटरल L M N O। नाउ स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट विद द फेयर फिगर। जैसे कि हमने बेस बनाया था LM, हम यहाँ पे भी LM बनाएंगे। LM इज आवर बेस, दैट इज 6 सेंटीमीटर।
यहाँ पे राउंडर का यूज करेंगे और L से 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे। ओके, और आप सभी को पता है पहले एक ट्रायंगल बनने वाला है, फिर M से भी हम लोग राउंडर का यूज करेंगे और 7.5 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर लेंगे। जैसे ही हम उस आर्क से L को और M को जोड़ लेंगे, हमारे पास एक ट्रायंगल जैसा फिगर रेडी हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल मिल चुका है, दैट इज LMO। नाउ OM को बेस रखना है, फिर O से आप 4.5 सेंटीमीटर का आर्क बना लो एंड M से भी आप एक 4.5 सेंटीमीटर का आर्क बना लो एंड आफ्टर मेकिंग दैट आर्क जॉइन टू O and as well as M। O से भी जोड़ लो और M से भी उसे जोड़ लो। इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, क्वाड्रिलेटरल LMNO। सो फाइनली हमारा क्वाड्रिलेटरल हमें मिल चुका है। नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, दैट इज प्रैक्टिस सेट 8.2 एंड आई विल जस्ट लेट यू नो स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 8.2 8.1 से भी इजी है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर हमें रेक्टेंगल बनाना है। सो हियर वी नीड टू ड्रॉ रेक्टेंगल ABCD सच दैट लेंथ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6.0 मतलब 6 ही होता है, एंड लेंथ BC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। काफी सिंपल, आपको पता है रेक्टेंगल का दो साइड इक्वल होता है, मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ एवरी रेक्टेंगल। सो यहाँ पे AB और DC इक्वल होगा एंड AD एंड BC विल बी इक्वल एंड AB विल बी अ बेस, सो AB विल बी 6 सेंटीमीटर एज वेल एज DC विल बी ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली BC हमारा 4.5 होगा तो AD भी हमारा 4.5 होगा। अ सिंपल सम, फर्स्ट आई ड्रॉ अ बेस AB दैट इज 6 सेंटीमीटर। सो हमने यहाँ पे बेस AB को ड्रॉ कर लिया है। बेस AB एक बार ड्रॉ होने के बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है, अपना राउंडर निकाल लेना है। आप इसे प्रोटेक्टर की मदद से भी कर सकते हो। 90 डिग्री पहले ड्रॉ कर लो। 90 डिग्री ड्रॉ करने के बाद फिर आप आर्क का मदद ले सकते हो। सो आप 90 डिग्री प्रोटेक्टर की मदद से 90 डिग्री ले लिया, फिर जो B से 90 डिग्री एंगल बन चुका है वहां पे आप राउंडर रख के 4.5 सेंटीमीटर कट कर लो एंड देन सेम प्रोसेस आपको A के साथ भी करना है। A के यहाँ पे भी एक प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लो, दैट इज स्ट्रेट लाइन एंड सिमिलरली वी हैव टू ड्रॉ 4.5 सेंटीमीटर अगेन। सो फिर से 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क बना लो एंड उसे C से जोड़ लो। सो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, क्वाड्रिलेटरल ABC एंड यू विल गेट D। ओके, सो यहाँ पे हमें बहुत ही इजीली मिल चुका है क्वाड्रिलेटरल ABCD। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ स्क्वायर। स्क्वायर और रेक्टेंगल में ज्यादा फर्क नहीं है। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड सिमिलर होते हैं, स्क्वायर में सारे साइड सिमिलर होते हैं, मीन्स ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर सिमिलर। तो यहाँ पे एक ही मेजरमेंट दिया हुआ रहेगा। सो वी विल ड्रॉ अ स्क्वायर WXYZ विथ साइड 5.2 सेंटीमीटर। सो 5.2 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर रेडी करना है। सो सबसे पहले अगर आप रफ फिगर बना रहे हो तो आपको बनाना पड़ेगा WXYZ। आप किसी को भी बेस रख सकते हो, मैंने यहाँ पे WX को बेस रखा है। ओके, और अगर WX 5.2 होगा स्टूडेंट तो सारे मीन्स सारे साइड क्या हो गए, 5.2 ही होने वाले हैं। तो इसे भी हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कर लेंगे कि WX जो है वो 5.2 सेंटीमीटर है और सारे जो साइड है वो 2.5 सेंटीमीटर है। लेट्स स्टार्ट विद द फेयर फिगर। फेयर फिगर में पहला मैं बेस बना लूंगा WX जो बन चुका है। फिर सेम आपको प्रोटेक्टर का यूज करना है, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है एंड आफ्टर ड्रॉइंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री आपको 5.2 सेंटीमीटर, यस हर बार आपको 5.2 सेंटीमीटर ही यूज करना है। सो 5.2 सेंटीमीटर का आपको X से एक आर्क बना लेना है एंड सेम चीज आप W से भी करेंगे।
W के ऊपर भी आप प्रोटेक्टर को रखेंगे, वहां पे भी एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद फिर से आप 5.2 सेंटीमीटर का आर्क बना सकते हैं। एंड आफ्टर ड्राइंग 5.2 सेंटीमीटर आर्क यू कैन ज्वाइन बोथ द कट पॉइंट, जहां पे वो सेगमेंट को कट किया है उसको जोड़ दो, तो आपको W, X, Y, Z चारों पॉइंट मिल जाएंगे। सो यू गॉट योर क्वाड्रिलेटरल W, X, Y, Z एज अ स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे ये सम भी काफी इजीली सॉल्व हो चुका है। हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे थर्ड सम की तरफ। थर्ड सम वी हैव टू ड्रॉ अ rhombus. I will just let you know student that rhombus also have 4 equal side, but it does not having 4 angle 90 degree. Means the property of a square and the rhombus is different only because of that 90 degree angle. Okay student, otherwise all the 4 sides of the rhombus is also equal. So let us draw rhombus KLMN. Now first we will draw a rough figure. In the rough figure I will take K and L as a base. After taking KL as a base, I will mark 75 degree from angle K. Then I will take a rounder and make an arc of 4 centimeter from K toward N, and again from that marked arc I will draw one arc from L and from N, and that point I'll meet each other and I will create a rhombus. So hope you understand, but we will see in the fair figure if we are doubt a bit. Okay students, so as I told कि KL को हमें बेस लेना है, so KL क्या होगा 4 सेंटीमीटर। ओके, अब प्रोटेक्टर रखेंगे। प्रोटेक्टर रख के क्या करने वाले हैं 75 डिग्री। 75 डिग्री रखने के बाद आपको आपका राउंडर निकाल लेना है। राउंडर निकाल के आप कहाँ पे रखोगे स्टूडेंट, एग्जैक्टली के पे रखोगे पॉइंटर को, और पेंसिल वाले साइड से आप कहाँ पे कट करोगे, जो एंगल है वहां पे आप कट कर दोगे तो आपको मिलेगा एक आर्क। अब ये जो आर्क मिलेगा आपको 4 सेंटीमीटर का, यही है हमारा पॉइंट एन। देखते वो कैसे बनेगा। तो राउंडर से आपने के पे रख के एक आर्क बनाया, और वो कितने सेंटीमीटर का बनाया आपने 4 सेंटीमीटर का। नाउ फिर से उसी आर्क के ऊपर रख के आपको आगे राउंडर को बिना हिलाए, क्योंकि 4 सेंटीमीटर ये आगे कट करना है, एंड एल के ऊपर रख के फिर से एक आर्क बनाना है। तो ये जो आर्क मिलेगा स्टूडेंट, इसको आपको एक दूसरे से जोड़ लेना है। फिर आपका रेडी हो जाएगा रोम्बस के एल एम एन एन। बहुत ही इजीली ये चीज आपको मिल जाएगा स्टूडेंट, और हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। Okay, so that's all for today. We are going to continue this topic in the next lecture, and I hope all of you have understood the lecture very well. Yes, sir. We have understood the lecture very clearly. But, Sir Roy, now it's time to ask one question. Yes, I know, Sam. Let me ask the question. Now, if you are using the protector on the segment on the left hand side, so which number you will follow? Upper number of the protector or the down number of the protector? Comment the answer in the comment box. Also, write your name below that so that I can announce all the winning name in the next lecture. Sir Roy, I already know the answer. I also, and I'm going to write the answer in the comment box so that in the next lecture, sir can announce my name in the winner list. Thank you for watching our video. आप सभी का हमारे तहे दिल से धन्यवाद है हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।